Welcome friends. Today in this video I am going to discuss classification of signals. This is lecture number 2 of the new subject, that is signal and system. Okay. So, in the previous lecture, that is lecture number 1, I discussed the some classification of the signals, that is like number 1, like continuous time and discrete continuous time, and then discrete time signal. Okay, this one I already discussed. Okay, second classification, that is analog and digital signal. Third classification, that is your deterministic and random signal. These three types of classification we already discussed. Now we will move for the fourth classification, that is even and odd signal. Before that, in lecture number 1, we also discussed about the various operation on the signals, that is time shifting, time scaling. Okay, so because we discussed that one in lecture number 1, so that in this lecture or in coming lectures we can easily use the time scaling, time shifting, and amplitude shifting, amplitude reversal, and so on. Okay, so now we are going to discuss the fourth classification, that is even and odd signal. Okay, in this what is even signal? We already discussed that one lecture in lecture 1. Even signal, what is this? These are symmetrical or mirror image about what? About y axis. Okay, about y axis, that is what we can write for the even signal. The condition is that x of t should be equal to x of minus of t. Okay, this is the condition for the even signal. If this condition satisfied, then the given signal will be even signal. Okay, for example, we discussed some example. So even signal, इसका मतलब क्या हो गया? आप देखो यहाँ पर x ऑफ माइनस टी, ये क्या हो गया आपको? टाइम रिवर्सल. ये क्या होता है? टाइम रिवर्सल. तो टाइम रिवर्सल में हम लोग ने क्या किया है? टाइम रिवर्सल में जस्ट टाइम एक्सिस को हमको रिवर्स कर देना और क्या करना है? और हम लोग को मिरर इमेज ले लेना है वाई एक्सिस के अबाउट. क्या कर देना है? मिरर इमेज ले लेना, और उससे जो सिग्नल मिलेगा, दैट इज एक्स ऑफ माइनस टी, दैट शुड बी इक्वल टू योर ओरिजिनल सिग्नल. अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो देन दैट सिग्नल विल बी योर इवन सिग्नल. सो फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखो. ओके, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. Okay, so this is your signal like this one. This is your minus 1 plus 1, and this is modulus, means magnitude is plus 1. Okay, so this is your given signal. Now you have to check whether this one is even signal or not. For the even signal, what we need to do? We need to take the time reversal. So we will plot x of minus of t. So we are going to plot x of minus of t. For this x of minus t, what we need to take? We need to take the mirror image with respect to y axis. So this one is your y axis. y axis के आपको क्या लेना है? मिरर इमेज. मीन्स ये वाला पोर्शन इधर आना चाहिए और ये वाला पोर्शन इस साइड आना चाहिए. ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आएगा, तो वो मिरर इमेज हो जाएगा. सो मीन्स ये +1 आपका कहाँ पर आ जाएगा? ये -1 पे, और जो -1 है वो +1 पे आ जाएगा. ठीक है. सो दिस विल बी योर न्यू वेव फॉर्म.
this is -1, this is +1, and this is your amplitude. Amplitude is fixed. As from this two diagram, what we can say x of minus t equal to x of t. As this condition is satisfied, so your given signal, that is this signal, your is even signal. समझ में आया? Okay, now tell me, or also it is given, if by looking at the signal, if you are able to identify the signal as a symmetrical about the y-axis, in this signal the signal is symmetrical about y-axis, because here is equal and here is equal, means this part and this part are the symmetrical, means एक जैसा लग रहा है, इसलिए ये क्या है, आपको ये इवन सिग्नल आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है, x ऑफ माइनस टी निकालना है ग्राफ, और उसके बाद इक्वल कर देना। और सेकेंड मेथड है, ये तो ग्राफिकल मेथड हुआ। मैथमेटिकल मेथड क्या होगा बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू राइट मैथमेटिकल इक्वेशन। x ऑफ टी को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। सो इसका वैल्यू कितना है आपको, +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया। और टाइम का रेंज कितना है, -1 से +1, ठीक है। x ऑफ माइनस टी क्या होगा, x ऑफ माइनस टी भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। सो ये क्या हो गया, +1 ही होगा, और यहाँ पर x ऑफ टी ये +1 ही है, दोनों क्या है, इक्वल है। सो दिस इज योर इवन सिग्नल, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल क्या होता है, एक और एग्जांपल आप कर लो सिग्नल का। फॉर एग्जांपल दिस इज योर सिग्नल लाइक दिस वन, ये कितना है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 -2, और ये एम्पलीट्यूड हो गया फिक्स, दैट इज 4, एंड ये एक एम्पलीट्यूड है, इसका भी मान लीजिए एम्पलीट्यूड 4 ही है। तो बताइए ये क्या है, इवन है या ऑड सिग्नल है? तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, क्या ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अराउंड। वाई एक्सिस मीन्स ये एक्सिस जो कि एक्स ऑफ टी लिखते हैं, वो क्या है, वाई एक्सिस, और ये एक्सिस टी। तो अब देखो वाई एक्सिस के अराउंड ये क्या है, सिमेट्रिकल है, जैसा ग्राफ इस साइड है उसी तरह का ग्राफ इस साइड है। सो इट इज़ डायरेक्टली इवन सिग्नल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेथड हो गया। और नहीं अगर आपको कन्फ्यूजन, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफ x ऑफ माइनस टी निकाल के, और दोनों को इक्वेट, दोनों सेम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इवन सिग्नल। और एग्जांपल में क्या है, x ऑफ टी इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट इंटू टी, ये क्या है, इवन सिग्नल है या ऑड, बताइए? ये इवन सिग्नल है, क्योंकि अगर आप x ऑफ माइनस टी फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एंड ये माइनस टी, जो इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। सो इट इज़ कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो एक्स ऑफ टी एज एक्स ऑफ टी is equal to x of minus t, therefore we can say the given signal means cos of omega naught t is even signal. Okay, now this is your even signal. Now for the odd signal what we need to do, for the odd signal के लिए क्या हो जाएगा बताइए, odd signal के लिए क्या लिखोगे, these are symmetrical about y एक्सिस के अबाउट ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिकल नहीं होता है, ठीक है। जैसे उसमें बोले थे इवन में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन इसमें इस तरह का कोई वो कंडीशन नहीं है। इसमें क्या चेक करना पड़ेगा कंडीशन, एक्स ऑफ टी है दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो इसी को, एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, सेम थिंग, दोनों क्या है, सेम ही है। ये कंडीशन अगर कोई सिग्नल सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑड सिग्नल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो तो ये क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर टाइम रिवर्सल हो रहा है, टाइम रिवर्सल भी हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, दोनों हो रहा है। मीन्स यहाँ पर दोनों ही करना, और दोनों इक्वल हैं जो ओरिजिनल सिग्नल है, तो हम क्या बोलेंगे, वो
ऑड सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो ये वाला सिग्नल एक्स ऑफ टी और ये मान लो टी है, और सिग्नल कुछ इस तरह से आपका, ठीक है, इस तरह से सिग्नल दिया, मैग्नीट्यूड मान लो +1 एंड -1, ठीक है। अब बताओ ये सिग्नल इवन है या ऑड। क्या करेंगे इसके लिए, पहले फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी मीन्स टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू 1 मान लीजिए, ये -1। टाइम रिवर्सल के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टाइम में डोमेन में जो प्लस है वो क्या होगा माइनस, और जो माइनस है वो प्लस, और एम्पलीट्यूड जो है सेम रहेगा। अगर -1 है तो -1 पे जो एम्पलीट्यूड है 1 वाला वही होगा, और 1 पे जो एम्पलीट्यूड है -1 वो होगा, ठीक है। तो मतलब टाइम रिवर्सल हो गया। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा आपको, ये प्लस है तो ये -1 पे चला जाएगा, और ये जो है माइनस का माइनस कर दोगे तो ये +1 पे चला जाएगा। सो +1 पे आपका पॉजिटिव, और ये -1 पे निगेटिव। ये -1 है तो ये निगेटिव आ जाएगा इस साइड, और ये +1 है इधर तो ये पॉजिटिव। ये -1 है, तो इस तरह का ग्राफ होगा। ये x ऑफ -t हुआ। अब क्या बोल रहा है, ये टाइम रिवर्सल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। एम्पलीट्यूड रिवर्सल का क्या मतलब हो गया, माइनस ऑफ x ऑफ -t करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। माइनस करने का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड को आप रिवर्स कर लें, मतलब जो आपको इधर में पॉजिटिव था वो क्या आ जाएगा नीचे, और जो नीचे में वो ऊपर चला जाएगा। और टाइम का क्या होगा, टाइम एक्सिस सेम ही होता है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस विल गो अप, सो दिस विल बी लाइक दिस वन, एंड दिस विल बी लाइक दिस वन। सो this is your -1, this is your +1. This now compare this signal, this original signal and this one, amplitude and time reversal signal. From this we can say that both the signal is same, as x of t is equal to minus of x of minus t. Therefore what we can say, this is your odd signal. This is your odd signal. ये कौन सा signal होगा, x of t is the odd signal. So this is your answer for this question. Okay, now for the second part, second question, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। एक और न्यूमेरिकल क्या है देखिए आप ध्यान से। टाइम हो गया, ये x ऑफ t हो गया। नाउ ये इस तरह से, ठीक है, इसका क्या होगा -2 हो गया, इसका +2 हो गया, ये -1, ये हो गया +1, ये x ऑफ t दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को दोनों करना है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल करना है, उसके बाद एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना है। अब मान लो इस सिग्नल को आप टाइम रिवर्सल करोगे तो क्या होगा, 2 वाला -2 में चला जाएगा। ये जो है इसका करो बनाओ, लेकिन क्या करना आपको देखने, डायग्राम मीन्स वेव फॉर्म देखने के साथ ही बता देना है कि ये इवन है या ऑड। क्योंकि आप देखो ये +2 इधर चला जाएगा, -2 इधर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला सिग्नल इधर आएगा, जब इसको रिवर्स करोगे तो सेम सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं लेंदी प्रोसेस से, मीन्स ग्राफिकल जो है, x ऑफ -t कर दो। x ऑफ -t कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 -2 में हो चला जाएगा, -2 में, और जो +2 है वो -2 है वो +2 में चला जाएगा। जो +2 है, जो +2 में है वो क्या होगा, माइनस है। जो +2 वाला है माइनस है, लेकिन ये वाला सिग्नल कहाँ जा रहा है, इस साइड चला जा रहा है, इस साइड। सो इधर में क्या हो जाएगा, ये इस साइड में क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, बताइए कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इधर में क्या है, जो माइनस वाला क्या था, पॉजिटिव था, तो इधर में आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस बार इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये +1 है, ये -1 है, और सब कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया x ऑफ -t। नाउ एक और बनाएंगे हम लोग वेव फॉर्म, किसका बनाएंगे, ये दिस वेव फॉर्म विल बी माइनस ऑफ x ऑफ -t, मतलब एम्पलीट्यूड का आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा, जो प्लस में है, जो प्लस में है वो क्या चला जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, और जो माइनस में है वो यहाँ प्लस में चला जाएगा। सो दिस विल बी नथिंग बट लाइक दिस वन, दिस इज़ योर -2, दिस इज़ योर +2,
this is your -1 and this will be your +1. So this is your waveform. Now from this diagram, these two diagram, this and this, what we can say, x of t is equal to minus of x of minus t, and hence the given signal, that is x of t, is what, which signal, it is odd signal. ओके, वेरी इजी. इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है. ठीक है, एक्स ऑफ टी क्या हो गया, ऑड सिग्नल. नाउ फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो आप, एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी. ये क्या होगा, सिग्नल साइन है. साइन में क्या कर दोगे आप, एक्स ऑफ माइनस टी कर दोगे. ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया. तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी हो जाएगा. अब क्या करना हमको, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी करना है. माइनस यहाँ पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी. एज दिस टू आर इक्वल, दैट इज एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी. सो द गिवन सिग्नल इज व्हाट, ऑड सिग्नल. तो साइन सिग्नल क्या हो गया, ऑड, और कॉस सिग्नल क्या हो गया, इवन सिग्नल. वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये बार बार यूज करना पड़ेगा आपको. ठीक है, इन कमिंग लेक्चर्स. सो नाउ वी विल मूव फॉर द डीसी कांस्टेंट. डीसी वैल्यू बताइए क्या होगा. एग्जांपल के लिए डीसी, एग्जांपल के लिए क्या ले लो, डीसी. डीसी मीन्स एक्स ऑफ टी इक्वल टू, डीसी मीन्स कोई कांस्टेंट है. ए नॉट क्या है, कांस्टेंट है. डीसी या कांस्टेंट वैल्यू सिग्नल है. तो ये क्या होगा बताइए, एक्स ऑफ माइनस टी कर दीजिएगा तो भी ये क्या होगा, एक्स ऑफ माइनस टी कर दोगे तो भी ए नॉट ही होगा. एंड हेंस द सिग्नल विल बी इवन सिग्नल. साइन ऑफ पाई बाय टू क्या होगा, साइन बाय पाई बाय टू क्या होगा बताइए, ये भी इवन सिग्नल होगा, क्योंकि साइन पाई बाय टू का वैल्यू कितना होता है, 1, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, साइन ऑफ टी स्क्वायर का क्या होगा, ये साइन ऑफ टी स्क्वायर बताइए क्या होगा. ये मान लीजिए एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी है, तो क्या होगा, ये इवन सिग्नल होगा. क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि एक्स ऑफ माइनस टी आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ऑफ माइनस टी कर दोगे तो साइन ऑफ माइनस टी का स्क्वायर. सो इट विल बी साइन ऑफ टी स्क्वायर ओनली, विच इज नथिंग बट योर एक्स ऑफ टी. सो इट इज़ अ इवन सिग्नल. सो ये सब हो गया सिंपल एग्जांपल्स. आपको कभी इससे कंफ्यूजन नहीं होना है. Okay, now we will write some notes. नोट्स है इवन इंटू इवन. अगर इवन इंटू इवन करोगे, दो सिग्नल है इवन इंटू इवन, तो ये क्या देगा रिजल्ट, ये इवन सिग्नल देगा. कैसे, एग्जांपल के लिए टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर. देखिए टी स्क्वायर क्या आपका इवन सिग्नल है ना, और टी स्क्वायर ये भी इवन है. इवन इंटू इवन कीजिए तो क्या होगा, टी टू द पावर 4, जो कि अल्सो एक इवन सिग्नल है. समझे, इसलिए बोले थे. एक और लिखे, इवन इंटू ऑड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑड सिग्नल आएगा रिजल्ट. जैसे टी स्क्वायर इंटू टी कर दीजिए तो ये टी क्यूब आएगा, जो कि ऑड है. ऑड इंटू ऑड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इवन सिग्नल दे देगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल टी क्यूब इंटू टी टू द पावर 4, जो कि इवन सिग्नल. ठीक है, ये सब सिंपल एग्जांपल नोट्स है. ओके, उसके बाद क्या होगा, इवन प्लस माइनस इवन करोगे, मीन्स इवन में अगर जोड़ोगे इवन को या फिर इवन में घटाओगे इवन को, तो वो क्या सिग्नल देगा, वो इवन सिग्नल ही देगा. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टी स्क्वायर प्लस कॉस टी है, तो ये सिग्नल क्या होगा, ये आपको इवन सिग्नल होगा, क्योंकि टी स्क्वायर क्या है, इवन, कॉस टी क्या है, इवन. ये कैसे होता है, ये कैसे होगा बताइए. टी को रिप्लेस करना है माइनस टी से, और उसके बाद पुट चेक कीजिए. ठीक है, जो मैथमेटिकल प्रोसेस है, दैट इज एक्स ऑफ टी मान लीजिए ये वाला है, तो हम लोग निकालेंगे एक्स ऑफ माइनस टी. एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा, माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ माइनस टी. सो दिस विल बी नथिंग बट योर टी स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ टी, विच इज़ नथिंग सेम एज एक्स ऑफ टी. हेंस इट इज़ अ इवन सिग्नल. समझ में आया. नाउ इवन प्लस माइनस ऑड होगा तो क्या होगा, इवन प्लस माइनस ऑड यदि होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑड सिग्नल होगा. एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे
टी क्यूब प्लस साइन टी। तो आप चेक कर लो क्या कैसे आ रहा है। इवन प्लस माइनस ऑड है, यहाँ पर मिस्टेक क्या है, इवन ऑड प्लस ऑड, अगर ऑड प्लस ऑड है तो वो ऑड सिग्नल आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो टी क्यूब प्लस साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड सिग्नल होगा, क्योंकि दोनों ऑड है तो वो ऑड ही होगा। यदि इवन प्लस ऑड कर दोगे तो ये क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये इवन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, नीनो। ये कौन सा सिग्नल हो जाएगा, नीनो। कौन सा, इवन प्लस ऑड कर दोगे तो, ठीक है। उसको आप बता नहीं सकते हो क्या होगा। जैसे टी स्क्वायर प्लस साइन टी है, टी स्क्वायर क्या है, इवन सिग्नल, और साइन टी ऑड सिग्नल है। तो अब इसको एग्जाम्पल की तरह चेक कर लेते हैं, क्यों नहीं ये इवन या ऑड है। टी स्क्वायर प्लस साइन टी है, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स ऑफ माइनस टी। एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा, माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ माइनस ऑफ टी होगा ना। टी को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस टी से, तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन टी, होगा ना। ये फॉर द इवन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग, सो नॉट इवन सिग्नल ये नहीं होगा। नाउ फॉर द ऑड के लिए क्या कंडीशन है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी पुट करोगे तो क्या ये एक्स ऑफ टी आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक्स ऑफ माइनस टी उसके आगे माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस ऑफ साइन टी आएगा, जो कि हमारा एक्स ऑफ टी नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर क्या है, यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तो टी स्क्वायर के पहले माइनस आ जाएगा, कुछ इस तरह से माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन टी। सो इट इज़ अ नॉट ऑड, मीन्स ना ही इवन है ना ही ये ऑड है, नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, नॉट सेटिस्फाई। समझ गए ये इवन ऑड का झमेला, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट है इवन ऑड में, क्या एक कंसेप्ट है, मान लीजिए एक एक्स ऑफ टी दिया हुआ है आपको। एक्स ऑफ टी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिग्नल, दैट इज इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल। दो पार्ट है, एक सिग्नल दिया हुआ है और जिसमें दो पार्ट है, इवन सिग्नल भी है ऑड सिग्नल भी। तो आपको यहाँ पर इवन सिग्नल निकालना होगा। तो इवन सिग्नल कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, वेयर एक्स ऑफ टी मीन्स इवन पार्ट ऑफ सिग्नल। ये क्या है, इवन पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी और द गिवन सिग्नल। क्या होगा ये बताइए, एक्स ऑफ टी प्लस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2। और फॉर द ऑड पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऑड पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी, इसको सिर्फ बीच में माइनस कर देना, एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2। तो ये क्या दे देगा आपको, ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के लिए क्या है, फर्स्ट तो क्या है, इवन फाइंड इवन पार्ट एंड द ऑड पार्ट ऑफ द गिवन सिग्नल ऑफ द फॉर सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल टू 2 - 3 साइन टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉस टी। ठीक है, इस तरह का मान लीजिए सिग्नल दिया, इसमें बोल रहा है इवन पार्ट फाइंड आउट करना और ऑड पार्ट। तो क्या करोगे आप, इवन पार्ट तो यहाँ से देखने से हम लोग को पता चल रहा है ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है आपको इवन सिग्नल है। ये क्या है, ये देखिए ऊपर में क्या है, ये साइन टी ऑड है, नीचे में इवन इंटू ऑड क्या होता है बताइए। हमने लिखा है यहाँ पर इवन इंटू ऑड ही देता है, तो इवन इंटू ऑड क्या देगा, ये क्या दे देगा, इवन इंटू ऑड, तो ये दे देगा आपको ऑड सिग्नल। और ये क्या देगा, इवन इंटू
ऑड, इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन क्या दे देगा आपको, इवन इंटू इवन, इवन ही देगा, ठीक है। सो इवन पार्ट में क्या क्या इवन है, 2 है और क्या है प्लस टी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ टी, और ऑड पार्ट में क्या है सिग्नल, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट है, दैट इज 3 इंटू साइन टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ऑड पार्ट और इवन पार्ट ऑफ द गिवन सिग्नल, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर वन मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है, ड्रॉ द इवन पार्ट, इवन पार्ट, इवन पार्ट का मतलब एक्स ई ऑफ टी, इवन पार्ट एंड ऑड पार्ट ऑफ, ऑड पार्ट ऑफ, ऑड पार्ट, ऑड पार्ट का मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट ऑफ टी ऑफ द सिग्नल, सिग्नल एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी क्या है, ये आपको दिया हुआ है ग्राफ, ये टी दिया है, ये एक्स ऑफ टी है, और ग्राफ कैसा है, ग्राफ कुछ इस तरह से आपको, ये कितना है, ये -2 है, ये +2 है, और ये मैग्नीट्यूड आपको 4 है। तो इसको क्या करना है हम लोग को, इवन एंड ऑड पार्ट को हम लोग को ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इवन पार्ट के लिए हम लोग को क्या चाहिए बताइए, इवन एक्स ऑफ ई ऑफ टी क्या होता है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2, मीन्स एक्स ऑफ टी तो ये हो गया, अब हम लोग को एक्स ऑफ माइनस टी भी चाहिए, तो वी विल प्लॉट एक्स ऑफ माइनस टी, ये टी हो गया और ये एक्स ऑफ माइनस टी प्लॉट कीजिए, कैसा होगा, एक्स ऑफ माइनस टी का मतलब क्या होगा, टाइम को आपको रिवर्स करना है बस, ये +2 है तो ये -2 पे जाएगा, और जो -2 है वो +2 पे आएगा, मान लीजिए यहाँ +2 है, +2, और ये क्या हो जाएगा, इधर में क्या है कांस्टेंट वाला, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये इधर आ गया, और इधर में ये फॉल हो रहा है तो ये इस तरह से हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका सिग्नल एक्स ऑफ माइनस टी। अब क्या करना है, इवन पार्ट के लिए हम लोग को दोनों को ऐड करना है, इस दोनों को, और उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों सिग्नल को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स ऑफ ई टी, क्या होगा, दोनों को हम लोग को ऐड करना है, तो यहाँ पर टर्मिनल क्या है -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, तो पहले हम लोग मार्क कर देंगे लिमिट जो मैक्सिमम है, दैट इज -2 एंड +2। अब बताइए +2 पे -2 पे बताइए क्या है, -2 पे ये 0, ये 0, तो 0 होगा, लेकिन -2 पे एक यहाँ पर 1 भी है, तो सो इट विल बी 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा, -2 पे तो 1 आएगा, 1 नहीं, यहाँ पर 4 है, 4 आएगा, 0, एक्चुअली -2 पे आप कितना देख रहे हैं, यहाँ 0 और यहाँ पर 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, तो -2 पे कितना आ जाएगा आपको, 0 + 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा, ये हो गया आपको 2, ठीक है। उसी तरह आप ओरिजिन पे देखो, ओरिजिन पे ये कितना है, 4 है और ये 4, तो ओरिजिन पे कितना आ जाएगा, ये 4 + 4 डिवाइड बाई 2, 8/2 कितना होगा, ये 4, तो मीन्स ओरिजिन पे कितना आ गया, ये 4, ये वाला पॉइंट आएगा, ये हो गया आपको 4, ठीक है। उसी तरह आप +2 पे चेक करो, +2 पे क्या आएगा बताइए, +2 पे आप चेक करो, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 + 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2, 2 ही आ रहा है, मतलब सेम एज दिस वन आ रहा है, आ गया। अब इसको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, इसको इस तरह से, इस तरह का वेव फॉर्म आ गया, तो ये हो गया आपको इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल, इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल। ऑड पार्ट आप खुद से कीजिए, ऑड पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद से कीजिए, क्या होगा ऑड के लिए, पहले तो आप एक्स ओ ऑफ टी लिखो, क्या होता है ये ऑड पार्ट, क्या होता है एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2, मीन्स इस दोनों सिग्नल को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सो अगर आप इसको प्लॉट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी, और ये हो गया आपको ऑड पार्ट, तो ऑड के लिए क्या कर देंगे हम लोग, ऑड सिग्नल के लिए पहले तो आप 0 पे चेक करो, 0 पे कितना आ रहा है वैल्यू, 0 पे
जीरो पे क्या करना है, माइनस करना है, किसको, इस सिग्नल को माइनस करना है इसमें। तो पहले कितना है 4 हो गया, माइनस कितना वैल्यू ये माइनस करेंगे, -4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये 0 पे हो गया। +2 पे बताइए कितना होगा, +2 पे ये वाला पोर्शन कितना है, 0 0 पुट करेंगे। ये वाला पोर्शन कितना है यहाँ पर +4, लेकिन माइनस करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा -2। सिमिलरली -2 पे कितना आ जाएगा, -2 पे ये इस पॉइंट पे यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर 0, तो 4 - 0 बाई 2 कितना आएगा, ये 2। मीन्स ओरिजिन पे 0 आएगा, ठीक है, और ये हो गया आपको +2 और ये हो गया आपको -2। +2 पे कितना आ रहा है, -2, यहाँ पर आ रहा है -2, और ये -2 पे +2 आ रहा है, -2 पे ये +2। इस तरह का सिग्नल का ग्राफ आ रहा है। सो अब हम इसको प्लॉट कर देंगे, कैसे, इस तरह से। ये हो जाएगा आपको ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल, समझे। इस तरह से ग्राफ आएगा, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, डाउनवर्ड, सो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक डाउन हो गया। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक डाउन है, डाउन मीन्स स्लोपिंग है, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रॉपर्टी स्लोपिंग का ही होगा, समझे। तो ये आपका ड्रॉ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे करना है ये आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा 4th नंबर हुआ, 4th क्लासिफिकेशन, दैट इज इवन एंड ऑड। नाउ वी विल मूव फॉर द 5th क्लासिफिकेशन। 5th क्लासिफिकेशन देखते हैं कैसा है। 5th क्लासिफिकेशन क्या है, कंजुगेट सिमेट्रिकल, कंजुगेट सिमेट्रिक एंड conjugate anti-symmetric सिग्नल। सो कौन सा सिग्नल हो जाएगा, ये हो जाएगा कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल एंड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या कंडीशन, जैसे हम लोग इवन एंड ऑड के लिए देखे थे, सेम प्रोसेस। सो फर्स्ट इसमें है कंजुगेट सिमेट्रिक। तो कंजुगेट सिमेट्रिक मतलब हो गया CS। कंजुगेट सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, ग्राफ का क्या कंडीशन होना चाहिए कंजुगेट सिमेट्रिक का, x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ -t का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a + jb। अगर आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, जो भी आयोटा वाला पोर्शन है, आयोटा को हम लोग माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, सो इट विल बी a - jb। इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं। जो भी आयोटा रहता है उसको क्या कर देते हैं, आयोटा मीन्स जे को क्या कर देते हैं, -j से रिप्लेस कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पर माइनस होता, इस कंडीशन माइनस पहले से रहता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता, सिंपल है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले टाइम रिवर्सल करना है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। अगर दोनों सिग्नल सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल होगा। कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होगा, CS। इसके लिए सेम सिग्नल सेम कंडीशन, थोड़ा सा माइनस आगे लगेगा बस, ठीक है। कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होगा जाएगा, x ऑफ t इक्वल टू -x कंजुगेट ऑफ -t, सिंपल। सो ये हो जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल के लिए हो जाएगा ये वाला, और ये सिमेट्रिक के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब ये दोनों तो हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए, अब मान लीजिए एक सिग्नल है आपको x ऑफ t इक्वल टू a + jb है, ठीक है। ये x कंजुगेट क्या हो जाएगा, x कंजुगेट ऑफ -t। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम एक कंक्लूड करना चाह रहे हैं। कंक्लूड क्या है, देखिए, x ऑफ t अगर मान लीजिए इक्वल टू है a ऑफ t +
जे ऑफ बी ऑफ टी, मान लीजिए इस तरह से टाइम डोमेन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे, वो क्या होगा ए ऑफ माइनस टी प्लस जे ऑफ बी ऑफ माइनस टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट लोगे तो क्या होगा, ए ऑफ माइनस टी माइनस जे है तो उसके आगे क्या लगेगा माइनस, और सभी सेम होगा, इस तरह का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। नाउ कंडीशन फॉर द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिग्नल, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स कंजुगेट ऑफ माइनस टी होना चाहिए। नाउ अगर ये 1 है इक्वेशन, ये 2 है, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो हम लोग को क्या पता चल रहा है, जो रियल पार्ट है ये रियल हो गया, ये इमेजनरी, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। सो हम लोग क्या कर देंगे, कंडीशन अगर इस तरह का है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, ए ऑफ टी विल बी इक्वल टू ए ऑफ माइनस टी, एंड हो गया वो, और इमेजनरी पार्ट जो है हमारा बी ऑफ टी इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ बी ऑफ माइनस टी। सो फॉर एनी सिग्नल टू बी conjugate symmetric, for any signal to be conjugate symmetrical signal, its signal, the real part of signal must be क्या होना चाहिए, इवन, एंड द इमेजनरी पार्ट ऑफ द सिग्नल मस्ट बी क्या होना चाहिए, ऑड सिग्नल। समझे, तो मतलब क्या हो गया, जो रियल पार्ट है उसको इवन कर देना है, अगर होगा किसी भी सिग्नल का, यदि रियल पार्ट इवन है और इमेजनरी पार्ट ऑड है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं वो सिग्नल क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल होगा। ठीक है, नाउ कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होगा बताइए। इसके लिए आपको खुद से डेरिवेशन करना है, इसी तरह से एक्स ऑफ टी को एज्यूम कर लेना है, ए ऑफ टी प्लस जे ऑफ बी ऑफ टी, और उसके बाद डिराइव करना है। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा इसमें, एक्स स्टार ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस ऑफ ए ऑफ माइनस टी माइनस प्लस हो जाएगा जे ऑफ बी ऑफ माइनस टी, ये यहाँ से पुट कर दीजिए माइनस आगे। तो अब देखिए फॉर सी एस के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम, एक्स ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कंजुगेट ऑफ माइनस टी। नाउ अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या होना चाहिए, रियल पार्ट को कंपेयर करो तो ये माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए टी, ये किसका कंडीशन है, ये ऑड का कंडीशन है, और ये किसका कंडीशन है, इमेजनरी पार्ट को अब इक्वल करो, इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ऑफ माइनस ऑफ टी। सो इट इज़ द कंडीशन फॉर द इवन। मतलब यही हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिग्नल है, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक कंडीशन है, अगर कोई सिग्नल को कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक कंडीशन होना चाहिए तो उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, रियल पार्ट शुड बी ऑड होना चाहिए, और इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए, इवन पार्ट होना चाहिए। इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए, इवन, और रियल पार्ट क्या होना चाहिए, ऑड। सो दैट इज़ द योर कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स एंटी कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर इज दैट, अगर मान लीजिए कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल एंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल। मीन्स एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो हम लोग को पता करना है कि ये पोर्शन क्या होगा और ये पोर्शन क्या होगा, वेयर कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट विल बी इक्वल टू, जैसे आप इवन ऑड में पार्ट निकाले थे, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स स्टार ऑफ माइनस टी हो जाएगा सिंपल, डिवाइड बाय 2, एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट विल बी
इक्वल टू सेम एज इवन एंड ऑड कीजिए, सिर्फ यहाँ पर कंजुगेट का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये हमारा हो जाएगा कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए कोई आपको दे दिया है क्वेश्चन कि ये एक सिग्नल दे दिया एक्स ऑफ टी, आपको निकालना है उसका कंजुगेट सिमेट्रिक पार्ट और कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस सिंपल फॉर्मूला ये पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। हम लोग तो सिग्नल एंड सिस्टम का एप्लीकेशन लेक्चर नंबर 1 में देखे हैं, कितना वाइड एप्लीकेशन है। सिग्नल एंड सिस्टम का वाइड एप्लीकेशन आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, दैट इज मशीन, पावर सिस्टम, कोई भी कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, सब में आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि ये टूल्स की तरह इसको देखा जाता है, मैथमेटिकल टूल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इमीडिएटली मिलते रहे, ठीक है। तो 5th नंबर हो गया, 5th क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ वी विल मूव फॉर द 6th क्लासिफिकेशन। और इसका नोट्स अगर चाहिए आपको, तो आप ये जो है टेलीग्राम आप देख सकते हो। यूट्यूब चैनल है हमारा वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये आपको वन स्टॉप फॉर ऑल का लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो वन स्टॉप फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉर द 6th, आई थिंक, हाँ ये 6th क्लासिफिकेशन। 6th क्लासिफिकेशन क्या, वी विल सी हाफ वेव। ये जो अभी हम क्लासिफिकेशन कर रही है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल क्या होता है? हाफ वेव सिमेट्रिक होता है और हाफ वेव एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, इस तरह से क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखेंगे। व्हाट इज़ द कंडीशन? एक्स ऑफ टी शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट बाय 2। अब देखिए ये जो है टी नॉट, ये टी नॉट क्या है आपको? टाइम पीरियड। ये क्या है? टाइम पीरियड हो गया। और ये और क्या? अब देखिए ये जो है पोर्शन, ये जो है टी प्लस टी नॉट बाई 2, ये क्या आपको? टाइम शिफ्टिंग है, सिंपल टाइम शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया? या तो आपको लेफ्ट मूव करना है या फिर राइट मूव करना है, सिंपल लेफ्ट मूव करना है या फिर राइट। अगर यदि यहाँ पर यदि प्लस होगा, प्लस टी नॉट बाई 2, प्लस मीन्स प्लस है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड मूव शिफ्ट करना है। अगर यदि माइनस हो गया तो इसको राइट हैंड साइड ग्राफ को मूव करना है या फिर खींचना है, ठीक है। माइनस के मतलब क्या हो गया? एम्पलीट्यूड रिवर्सल। तो पहले क्या करना है आपको? यदि मान लो एक्स ऑफ टी दिया है तो उसको क्या कर देंगे? टाइम शिफ्ट कर देंगे बाय हाउ मच? बाय टी नॉट बाई 2, मीन्स जितना टाइम पीरियड होगा उसका हाफ करेंगे और उतना से हम लोग शिफ्ट कर देंगे, या तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे या तो राइट, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कर देंगे? एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर देंगे। एम्पलीट्यूड रिवर्सल मतलब क्या? एम्पलीट्यूड वाइज उसको पलट देंगे, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा एम्पलीट्यूड में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि ये सिग्नल एक्स ऑफ टी की तरह है कि नहीं। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग? हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल समझेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन ये बहुत ही ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यूज करना पड़ेगा बार बार, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आपको यूज करना पड़ेगा। सो इट इज़, आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है। हाफ वेव के लिए कंडीशन क्या है? टाइम पीरियड का हाफ से हम लोग क्या कर देंगे? शिफ्ट। हाफ वेव मीन्स हाफ शिफ्ट करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? उसके बाद चेक करेंगे माइनस के रेस्पेक्ट में, समझे? हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए एक आपको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल आप देखिए, एग्जांपल से देखोगे तो ईजी होगा आपको अंडरस्टैंडिंग में।
ये आपका टाइम पीरियड है और ये क्या हो गया आपको एक्स ऑफ टी मीन्स सिग्नल है। तो आप मान लीजिए कुछ इस तरह से है सिग्नल, आपको इस तरह से पल्स बोला जाए इसको, सबका विड्थ सेम है। यहाँ पर ड्राइंग में थोड़ा अच्छा नहीं है ड्राइंग करने में, इसलिए आप इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूस सिग्नल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मान लीजिए आप इसको ए नॉट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है ए नॉट प्लस ए नॉट और इधर में माइनस ए नॉट, मैग्नीट्यूड मीन्स एम्पलीट्यूड हो गया हाईएस्ट। और इसका जो टाइम पीरियड है आप खुद इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कहाँ से जो है ना सेम वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है। जहाँ से वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपको टाइम पीरियड। तो आप देख सकते हो ये मान लीजिए ओरिजिन है 0, तो ये मान लो आप टी नॉट, तो टी नॉट के बाद क्या हो रहा है सेम सिग्नल रिपीट हो रहा है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपको हाफ, दैट इज़ टी नॉट बाई टू, टी नॉट बाई टू। ये इस तरह का सिग्नल दिया है। आपको क्या प्लॉट करना है, आपको ये पता करना है कि ये सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जो है वेव फॉर्म को शिफ्ट करेंगे। हम लोग मान लेंगे माइनस शिफ्ट, निगेटिव लेंगे, क्योंकि निगेटिव लेने से क्या होगा राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग के लिए थोड़ा इजी होता है। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे माइनस मीन्स एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू से हम लोग को वेव फॉर्म को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे उसको पलट देंगे। तो पहला हम लोग इसको ये वाला सिग्नल को प्लॉट करेंगे, उसके बाद एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे प्लॉट करना है। सो इसको थोड़ा ये एक्सटेंड कर दीजिए और ये हो गया आपको टाइम पीरियड टी। आप इसको थोड़ा टाइम स्केल को थोड़ा वो कर दीजिए मार्क, थोड़ा अच्छे से इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। मार्किंग करने से आपको इजी हो जाएगा। इस तरह से क्या कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ोगे तो आपको उसमें भी इसी तरह का बनाना पड़ता है टाइम डायग्राम जो होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, इस वेव फॉर्म को हम लोग किधर मूव करेंगे राइट साइड, क्योंकि माइनस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या कौन सा सिग्नल है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू, मीन्स इस सिग्नल को राइट साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे कितना से टी नॉट बाई टू से। मीन्स अगर जीरो है तो जीरो वाला कहाँ चला जाएगा आपको, ये चला जाएगा आपको टी नॉट बाई टू पे, ये हो जाएगा टी नॉट बाई टू। ठीक है, और जो टी नॉट बाई टू है वो कहाँ चला जाएगा, वो टी नॉट बाई टू से और शिफ्ट कर दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा टी नॉट पे। सो इसके बीच में ये दोनों पॉइंट यहाँ हो गया, मीन्स इसके बीच में ये वाला वेव फॉर्म आएगा। समझ में आया, समझ गए। ये इस तरह से पहला वेव फॉर्म आपका प्लॉट हो गया, समझे। मीन्स जो भी वेव फॉर्म है उसको आप टी नॉट बाई टू से शिफ्ट कर रहे हैं। मीन्स ये वाला सिग्नल यहाँ है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको भी आप कर लो इजीली, इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से बन गया। समझ गया। सबका एम्पलीट्यूड कितना है ए नॉट है और माइनस ए नॉट है इधर नीचे में। ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा वो एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, अब ये जो है ये वाला पोर्शन ये किधर मूव कर देगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इट विल बी निगेटिव पोर्शन विल बी इन दिस हियर। नाउ दिस पॉजिटिव विल बी हियर, पॉजिटिव ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और सो ऑन। उसके बाद सो ऑन मीन्स उसके बाद आप जैसे हैं वैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का ये वेव फॉर्म आ गया। ये क्या हो गया आपको एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब हम लोग को थर्ड स्टेप में क्या ड्रॉ करना है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ अ थर्ड स्टेप दैट इज एम्पलीट्यूड रिवर्सल माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू। एम्पलीट्यूड रिवर्सल मीन्स जस्ट वेव फॉर्म को हम लोग पलट देंगे। मीन्स जो माइनस ए नॉट है नीचे वाला क्या माइनस ए नॉट, ऊपर में क्या प्लस ए नॉट, तो इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह से, और ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा, मीन्स जैसे इधर में हो। जो माइनस में है वो प्लस में चला जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा।
इस तरह से हो जाएगा, समझे। ये हो जाएगा आपको प्लस ए नॉट, ये हो जाएगा माइनस ए नॉट। ये देखिए ये कहाँ पर, ये टी नॉट बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा टी नॉट बाई टू पे, ये कितना हो जाएगा टी नॉट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कंपेयर करो ये वेव फॉर्म को, ये जो फाइनल वेव फॉर्म है ये, और एक्स ऑफ टी जो ये वेव फॉर्म, क्या ये दोनों सेम है? यस ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि टी नॉट बाई टू में यहाँ पर भी पॉजिटिव प्लस है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ पर टी नॉट बाई टू से टी नॉट में क्या निगेटिव है, और यहाँ भी निगेटिव, मतलब उसके बाद सेम है। सो एज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू, सो व्हाट वी कैन से इट इज़ हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। ये कौन सा सिग्नल हो गया? हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कौन सा सिग्नल हो गया? हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल। ठीक है, ओके। नाउ इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल देखो आप इस तरह से, ये टाइम एक्सिस हो गया, ये हो गया आपको एक्स ऑफ टी, और आपका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से है। ये ऊपर का सेम मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है, नीचे का भी सेम एम्पलीट्यूड है। इस तरह से सेम है। ठीक है, और इसका ये क्या है, पिक है, इसका पिक ए नॉट मान लो, इसका पिक मान लो ए माइनस ए नॉट। ठीक है, और इसका ये बताओ ये टी नॉट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके बाद ही सिग्नल क्या हो रहा है, रिपीट। इसके बाद तो नहीं हो रहा है, ये वाला यहाँ पर हाईएस्ट आना चाहिए, सो हाईएस्ट विल बी हियर, सो दिस विल बी योर टी नॉट। ये टी नॉट हो जाएगा, और ये टी नॉट बाई टू होगा हाफ, और उसके बाद सो ऑन। ठीक है, इस तरह का सिग्नल है। तो ये बताना है क्या आपको ये हाफ वेव सिमेट्रिक है कि नहीं। ये हाफ वेव सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि अगर आप देखो ये टी नॉट बाई टू में कितना निगेटिव है, इसको शिफ्ट करोगे टी नॉट बाई टू से, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स निगेटिव हाईएस्ट यहाँ आ जाएगा। और जब इसको एम्पलीट्यूड रिवर्सल करोगे, पलटोगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, मीन्स प्लस पॉइंट पे। सो ये एक तरह से सेम वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, सो इट इज़ हाफ वेव सिमेट्रिकल वेव। ठीक है, ये कौन सा सिग्नल है? ये हो गया आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। कौन सा सिग्नल है? ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हाफ वेव सिमेट्रिकल कैसे है, तो आप क्या करोगे, दो डायग्राम और बनाओगे, एक एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू, और दूसरा क्या करोगे, उसको एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर देगा, और दोनों को कंपेयर करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल। ये क्वेश्चन एक हुआ। उसके बाद क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, एक सोतूत वेव का है। सोतूत वेव का क्या है, देखिए ये इस तरह से है। ये कुछ इस तरह से है वेव फॉर्म, एंड सो ऑन। इस तरह से वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको, सॉटूथ सिग्नल, सॉटूथ वेव। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ठीक है, ये सॉटूथ वेव फॉर्म है कि नहीं, हाफ वेव सिमेट्रिकल, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले इसको शिफ्ट करोगे टी नॉट, ये मैग्नीट्यूड हो गया आपको प्लस ए नॉट, ये हो गया सिग्नल एक्स ऑफ टी, और ये माइनस में हो गया माइनस ए नॉट, और ये इसका टाइम पीरियड बताइए कहाँ पर टी नॉट होगा। देखिए कहाँ से सिग्नल सेम है, ये सिग्नल इस पॉइंट से ओरिजिन से यहाँ से सेम है। देखिए यहाँ से अप जा रहा है, यहाँ से भी अप जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपको टाइम पीरियड टी नॉट, और ये होगा आपको टी नॉट बाई टू, और ये टाइम पीरियड कितना हो गया टी नॉट। तो अब इस वेव फॉर्म को हम लोग क्या करना है, शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है बताओ, टी नॉट बाई टू से, मीन्स टी नॉट बाई टू से शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा बताइए, टी नॉट बाई टू से आप शिफ्ट करोगे
टी नॉट बाई 2 से शिफ्ट करोगे, मतलब ये जो ओरिजिन है ये कहाँ चला जाएगा, ये ओरिजिन यहाँ पर चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। मीन्स इस पॉइंट पे भी क्या होगा, आपको अगर शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। और 0 का उल्टा या एम्पलीट्यूड रिवर्सल करोगे तो भी 0 होगा। लेकिन हमारा क्या आना चाहिए इस पॉइंट पे 0 नहीं, प्लस ए नॉट और या फिर ए माइनस आना चाहिए, इस तरह का वेव फॉर्म आना चाहिए। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो इट इज़ नॉट हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल, ये इसलिए ये हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल नहीं है। समझ में आया? ये कैसे इस तरह का होगा, आप अगर शिफ्ट करोगे वेव फॉर्म को, मैं ये ब्लू पेन से बना रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 से ये होगा इस तरह से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला सिग्नल आएगा, मीन्स पिक। इस तरह से होगा ये वेव फॉर्म। ठीक है, और ये जो है, ये जो नेगेटिव पिक है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, सो इट विल बी हियर। उसके बाद ये डाउन 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 चला जाएगा, उसके बाद ठीक है, इस तरह से वेव फॉर्म आपका बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर कट, यहाँ पर पिक, यहाँ पर कट, फिर यहाँ से ये 0, इस तरह से ये वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, ये आपका वेव फॉर्म क्या हो गया, ये एक्स ऑफ, ये हो गया एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट बाई टू, जिसको राइट हैंड साइड शिफ्ट जो किया है। अब देखो ये वेव फॉर्म, अब इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ये यहाँ पर है उसको ये यहाँ आ जाएगा, जो ये 0 है तो 0 का क्या होगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, और ये ठीक है, तो इस तरह का वेव फॉर्म आएगा। सो एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे हम लोग इसका, तो ये ग्राफ इधर से जाएगा, ये फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि हमारा सेम एज ये वेव फॉर्म। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला देखो, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इससे बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये और ये एक्स ऑफ टी क्या दोनों सेम है? एक्स ऑफ टी हमारा कौन सा है, ये एक्स ऑफ टी हमारा कौन सा है, ये वाला एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी ये हो गया। और ये कौन सा था, ये जो पेन है मार्किंग, ये देखो यहाँ पर एक्स ऑफ टी का देखोगे ग्राफ, तो ये आना चाहिए, लेकिन हम लोग का ये सिग्नल आ रहा है, सो इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। आप इसको क्लियरली ड्रॉ कर सकते हो। अगर उसके बाद भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, तो हम लोग ने क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग बाय टी नॉट बाई 2 और उसके बाद एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे। ठीक है, फॉर, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर एनी हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल, द एवरेज वैल्यू जो होगा, एवरेज वैल्यू विल बी क्या होगा, 0, बट कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको पता है कि यदि हाफ वेव सिमेट्रिक है, इसका मतलब ज़रूर है कि उसका एवरेज वैल्यू भी क्या होगा, 0। लेकिन अगर आपको पता है कि एवरेज वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हाफ वेव सिमेट्रिक होगा। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि हाफ वेव सिमेट्रिक होगा। जैसे कि यहाँ पर जो सिग्नल देखे थे, ये सॉटूथ वेव था, इसका एवरेज वैल्यू क्या था, एवरेज वैल्यू 0 था, एवरेज वैल्यू क्या था, 0, लेकिन ये हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है नहीं। अब देखिए ये आपका हाफ वेव सिमेट्रिकल है, इसका मतलब मस्ट है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। ये क्या है, हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एवरेज वैल्यू मस्ट बी 0। समझे कैसे बोल रहे हैं, डायग्राम देख के एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए टाइम पीरियड टी नॉट है, 0 से टी नॉट को अगर ध्यान में रखें तो जितना एरिया ऊपर में है ये प्लस है तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा। मीन्स नेट वैल्यू जो होगा
नेट मीन्स सम करोगे सभी वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में हाफ वेव सिमेट्रिक ये जो है सॉटूथ वेव ये वाला, इसमें मान लो ये वाला सिग्नल है, ये वाला, ठीक है, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एवरेज वैल्यू तो 0 है, लेकिन ये हाफ वेव सिमेट्रिकल 0 नहीं होगा, हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल नहीं है। मतलब क्या हो गया, अगर हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल है तो इसका मतलब ज़रूरी है कि उसका एवरेज वैल्यू 0 होगा। लेकिन रिवर्स जो है, मतलब एवरेज 0 है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाफ वेव सिमेट्रिक होगा ही। जैसे इसमें सॉटूथ वेव, सॉटूथ का एवरेज 0 है लेकिन वो हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल नहीं है। सो दिस इज़ योर sixth classification, that is half wave symmetrical signal. Now we will move for the seventh classification, that is periodic and non-periodic signal। periodic and non-periodic signal ये क्या होता है देखते हैं हम। पीरियोडिक, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल कब होगा, पीरियोडिक सिग्नल के बारे में आप थोड़ा एक लाइन लिख लो। पीरियोडिक सिग्नल कब होगा, जब x ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस n इंटू टाइम पीरियड टी नॉट। तो पीरियोडिक सिग्नल क्या होगा, अ सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक if it repeats itself after some time period। क्या होता है, कोई भी सिग्नल जो रिपीट होता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो वो क्या होगा सिग्नल, वो हो जाएगा आपको पीरियोडिक सिग्नल। रिपीट कर रहा है इसका मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ टी, दैट इज एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ, रिपीट है ना, टी प्लस माइनस n इंटू टी नॉट। ये कंडीशन हो गया पीरियोडिक सिग्नल का। जब भी इस तरह का कंडीशन हो, वेयर n क्या है आपका, n हो गया आपको इंटीजर जिसका वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यू। और टी नॉट क्या है, टी नॉट हो गया आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड, जिसको FTP भी बोलते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड। एंड दिस विल बी नॉट नाइदर इक्वल टू 0 नॉर इक्वल टू इन्फिनाइट, ना ही ये 0 हो सकता है ना ही ये इन्फिनाइट हो सकता है, ठीक है। अब ये FTP क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। FTP मीन्स फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, इट इज़ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंड फिक्स्ड वैल्यू। पॉजिटिव भी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, इट इज़ स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होना चाहिए लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, और वो भी क्या, फिक्स्ड वैल्यू किसका, टाइम का, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम फॉर विच सिग्नल इज पीरियोडिक। सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक। अब बताइए ये जो केस है इसमें क्या है, टाइम में क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम शिफ्टिंग कितना से कर रहे हैं, टी नॉट से। अगर किसी भी सिग्नल को अगर टाइम पीरियड टी नॉट से अगर शिफ्ट करोगे तो वो सिग्नल क्या आना चाहिए, सेम सिग्नल, मीन्स वो सिग्नल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उस सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक सिग्नल, समझे। टाइम शिफ्टिंग हो जाएगा। फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया। और ये जो डेफिनेशन बोले हैं, दिस डेफिनेशन जो एबव डेफिनेशन हमने लिखा है उसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है, जो FTP का जो फंडामेंटल टाइम पीरियड का जो डेफिनेशन लिखे हैं, दिस डेफिनेशन डज नॉट वर्क फॉर अ कांस्टेंट सिग्नल। अगर कोई कांस्टेंट सिग्नल दे दिया, मीन्स एक्स ऑफ टी इक्वल टू 5 6 ए नॉट कांस्टेंट वैल्यू, या फिर DC सिग्नल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, DC सिग्नल या कांस्टेंट सिग्नल
for constant signal the FTP fundamental time period is undefined. अनडिफाइंड क्यों होता है फंडामेंटल? अनडिफाइंड क्योंकि सिंस एक्स ऑफ टी इज पीरियोडिक, एक्स ऑफ टी क्या है? पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू या फिर एनी चॉइस ऑफ टी नॉट, एनी चॉइस ऑफ टी नॉट and so there is no smallest positive and fixed value, पॉजिटिव और फिक्स्ड वैल्यू मीन्स टी नॉट कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। सो इसको क्या बोल देंगे? जब भी जो सिग्नल पीरियोडिक नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक। जो पीरियोडिक नहीं है उसको क्या बोल देंगे? नॉन पीरियोडिक या फिर ए पीरियोडिक या फिर ए पीरियोडिक सिग्नल। ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सेम है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो मैंने अभी दिया है डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज़ नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड नहीं है? ये डीसी सिग्नल के लिए वैलिड नहीं है, वो उसके लिए हम लोग इवन ये पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक हम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एक तरह से नॉन पीरियोडिक ही बोल सकते हैं क्योंकि उसका एफटीपी डिफाइंड ही नहीं है, फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है। तो ये बेसिक हो गया, बेसिक अबाउट द ये टाइम क्या नाम है, पीरियोडिक सिग्नल एंड द फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा इस सिग्नल का। मान लीजिए एक सिग्नल है, सबका एम्पलीट्यूड जो है 1 है, सबका एम्पलीट्यूड कितना 1 है, इस तरह से 100 है, ठीक है। तो अब इसका बताइए टी नॉट क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होगा बताइए। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। तो इसका ये कितना हो जाएगा? ये -1, ये प्लस -1, ये और 100, ठीक है। तो बताइए इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हुआ है? टी नॉट, जिसको फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो आपको क्या देखना है? जहाँ से सिग्नल रिपीट हो रहा है, रिपीट देखिए, ये क्या है? 0 है, ये क्या है? 0, 0 के बाद कितना आ रहा है? ये 1 जा रहा है, तो 0 के बाद 1 जा रहा है, मीन्स ये हो गया टाइम पीरियड। तो कितना हो गया? 2। एफटीपी कितना हो जाएगा इस सिग्नल का? 2। समझे? इस तरह से वेव फॉर्म को देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि सेम वेव फॉर्म जो है, जो ये वेव फॉर्म है, ये वाला वेव फॉर्म ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी क्या है? सेम ही है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, सभी वेव फॉर्म क्या है? सेम। कितना पीरियड के बाद? ये टी नॉट पीरियड, जो टी नॉट मीन्स 2 पीरियड के बाद ये कितना हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या है? फाइंड एफटीपी मीन्स फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट इंटू टी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यूलर्स फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? ई टू दी पावर अगर जे थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ई टू दी पावर जे थीटा को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो जे ओमेगा नॉट टी है, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा आपको? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी, ठीक है। और उसके बाद आप कॉस या साइन में लिख सकते हो। ए नॉट को बाहर में रखना है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको एफटीपी निकालना है। तो एफटीपी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिक सिग्नल का कंडीशन जो है, पीरियोडिक के लिए एफटीपी मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक सिग्नल होगा उसी का निकलेगा एफटीपी। सो पीरियोडिक के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताइए? एक्स ऑफ टी प्लस माइनस क्या है? एफ, ये देखिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे और प्लस का हम लोग साइन लेंगे। प्लस का साइन लेने का मतलब वेव फॉर्म को माइनस की ओर शिफ्ट करेंगे। प्लस आप माइनस जो लेना ले सकते हो। तो x ऑफ प्लस n इक्वल टू 1 ले लेंगे और ये टी नॉट क्या हो जाएगा? ये वैल्यू अब चेक कीजिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा बताइए? पीरियोडिक के लिए क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ये हमारा कंडीशन है पीरियोडिक के लिए, है ना कंडीशन। तो एक्स ऑफ टी हमारा क्या है बताइए? ए नॉट इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, एक्स ऑफ टी हो गया, ये एक्स ऑफ टी है ना ये। और ये क्या है? ये वाला सिग्नल क्या होगा? जो टी है जहाँ पर उसको किससे रिप्लेस करेंगे? टी प्लस टी नॉट।
सो ये क्या हो जाएगा ए नॉट ई टू डी पावर जे ओमेगा नॉट, और टी को किससे रिप्लेस कर दिया, टी प्लस टी नॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। इस दोनों कंडीशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे, ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, होगा ना कैंसिल आउट। और ये क्या बचेगा, ई टू डी पावर जे ओमेगा नॉट टी, और हमको पता है क्या है, ए टू डी पावर अल्फ़ा है, ई टू डी पावर बीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू डी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर देते हैं पावर को, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ई टू डी पावर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ई टू डी पावर बीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ई टू डी पावर अल्फ़ा माइनस बीटा, जो माइनस वाला है पोर्शन वो ऊपर में निगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक है। ई टू डी पावर जे ओमेगा नॉट टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो ई टू डी पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू डी पावर जे ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, ये वाला सिग्नल आएगा ना। अब यहाँ से ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा बताइए, 1 इस साइड में होगा और इधर में ई टू डी पावर जे ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट। अब देखो ये इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ई टू डी पावर जे एंड थीटा है इक्वल टू 1, अगर 1 है, थीटा का मतलब क्या हो गया, ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, ठीक है। तो अगर ये इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इक्वल टू 1 है, 1 है ना। इसका मतलब क्या हो गया, क्या लिख सकते हो यहाँ से, थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ से, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है बताइए, जिसके कारण इमेजनरी पार्ट 0 हो और मैग्नीट्यूड 1 हो, तो तुम्हारा क्या होगा, जैसे 0 होगा, 0 कॉस 0 1, कॉस 0 1 0 होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 को काउंट नहीं करेंगे, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होगा, काउंट नहीं करेंगे, देखेंगे क्यों, ठीक है। 0 हो गया, पाई पुट करोगे तो क्या होगा, साइन पाई कितना होता है 0, लेकिन कॉस पाई कितना हो जाएगा -1 वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 वैल्यू है, इसलिए पाई नहीं होगा। 2 पाई होगा, 2 पाई होगा, क्योंकि कॉस 2 पाई कितना होगा, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई 1 होता है, और साइन 2 पाई 0 होता है, इसलिए 2 पाई होगा, एंड सो ऑन, उसके बाद क्या हो जाएगा, सो ऑन मीन्स के इंटू पाई, एक तरह से लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पाई, वेयर के क्या हो गया, के हो गया इंटीजर हो गया, जैसे 1, जैसे के इंटू 2 पाई लिखो, के इंटू 2 पाई इंटू के मीन्स सो 2 पाई हुआ कोमा 4 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 2 पाई, वेयर के क्या होगा, के 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और 0 यहाँ पर के नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम पीरियड निकाल रहे हो टी नॉट, तो टी नॉट जो निकालोगे उस केस के लिए आपको टी नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हम लोग के का वैल्यू सिर्फ 1 से लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपको 2 पाई इंटू के होगा, और थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा को इक्वल टू क्या है, यहाँ पर कंपेयर करो इसको और इसको, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, सो ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट इक्वल टू 2 पाई इंटू के होगा, इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट इंटू के, यह आपका टाइम पीरियड हो गया, किसका, एक्सपोनेंशियल सिग्नल का। सो टी नॉट क्या होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए क्या करना है, स्मॉलेस्ट, और के का वैल्यू क्या होना चाहिए, लिस्ट, और के का लिस्ट वैल्यू क्या होगा, के का 1, सो टी नॉट जो होगा फंडामेंटल टाइम पीरियड दैट इज़ 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, ये हो गया आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर द एक्सपोनेंशियल सिग्नल। के इक्वल टू 1 क्यों लेंगे, क्योंकि लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए। सो इस सिग्नल के लिए जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ई टू डी पावर जे, उसके बाद कुछ भी हो तो उसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, समझे, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। उसी तरह अगर आपका यदि एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो या फिर कोसाइन का भी सिग्नल हो, तो भी उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम ही होगा। सो फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है x1 ऑफ t इक्वल टू है आपको साइन ऑफ 4 पाई इंटू टी,
इसका टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड क्या होगा 2π/ω0, क्योंकि जो सिग्नल होता है उसको हम लोग लिखते हैं साइन ओमेगा इंटू टी। इस तरह का वेव फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड वेव फॉर्म क्या है बताइए, एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या लिखते हैं VM इंटू साइन ओमेगा टी। ये हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल होता है, ठीक है। ओमेगा इंटू टी क्या है, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जैसे इसको एक्सपोनेंशियल के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी साइन का है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/, टाइम पीरियड मीन्स टाइम। अगर यदि फ्रीक्वेंसी बोलेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो ω0 सिंपल है 2π हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकालना है T0, तो T0 क्या होगा 2π/ω0, तो ω0 क्या हो गया, ये हो जाएगा ω0 इंटू टी, सो 2π/4π हो जाएगा। सो इट विल बी नथिंग बट योर हाफ। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ यूनिट सेकेंड। समझे। क्वेश्चन फिर से देखिए, x2 ऑफ t है, दैट इज साइन ऑफ 4πt प्लस 30 डिग्री। इसका क्या होगा टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम 2π/ω0। ये जो टाइम शिफ्टिंग है इस पर ये फंडामेंटल टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर साइन सिग्नल को अगर शिफ्ट कर दोगे तुम 30 डिग्री से, वेव टाइम में शिफ्टिंग है ना कितना 30 डिग्री, मतलब लेफ्ट साइड मूव करोगे क्योंकि ये प्लस है, तो उस सिग्नल को अगर खींचोगे तो वेव फॉर्म क्या होगा सेम ही होगा, उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा सेम ही होगा, 2π ही होगा। 2π मीन्स जो इसका है दैट इज 4π। 4π से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सेम ही होगा, ठीक है, हाफ, ठीक है। उसी तरह से आपका आया थर्ड सिग्नल दैट इज x1 ऑफ t माइनस T0। अगर मान लीजिए इस तरह से, तो टाइम में क्या है t माइनस T0 मीन्स ये जो है इसमें हम लोग को t माइनस T0 कर देंगे, दैट इज साइन ऑफ ब्रैकेट में लिखिए 4π, और ये क्या हो जाएगा t माइनस T0 कर देंगे। सो इस तरह से हो जाएगा। सो इसका भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 2π/ω0। ω0 क्या होगा, ये 4π, दैट इज हाफ। मीन्स टाइम शिफ्टिंग हो या फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर शिफ्टिंग हुआ फेज, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 4πt मीन्स ω-t, ये क्या होता है थीटा होता है, एंगल होता है, एंगल में अगर कुछ ऐड करोगे तो वो क्या होगा एंगल ही हुआ, तो एंगुलर शिफ्ट हुआ या फिर फेज शिफ्ट जिसको बोलते हैं वो भी होगा, तो भी सिग्नल हमारा क्या होगा सेम ही आता है। टाइम पीरियड क्या होता है सेम ही आता है, क्योंकि वेव का शेप जो है ना वेव फॉर्म देखने में एक ही जैसा रहता है, ठीक है। और x4 ऑफ t क्या होगा बताओ, मान लीजिए x ऑफ माइनस टी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये वेव फॉर्म माइनस ऑफ साइन ऑफ 4πt होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, माइनस से मतलब नहीं है, इसका ω0 से मतलब है, सो 2π/ω0, ω0 कितना है 4π, सो इट विल बी हाफ सेकेंड। फिर से एक और क्वेश्चन देखो, x5 ऑफ टी, इसको इक्वल टू x1 माइनस ऑफ टी लिख दिया, मीन्स एम्पलीट्यूड रिवर्सल किए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 4πt ही होगा, तो इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा सेम ही होगा, दैट इज़ 2π/ω0, दैट इज़ हाफ, क्योंकि ω0 क्या है ये जो टाइम से मल्टीप्लाई हो, दैट इज 4π/ω0। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है, ये मान लीजिए 1 + x1 ऑफ t है, तो इसका क्या होगा टाइम पीरियड, इसका क्या होगा बोलिए, इसका भी टाइम पीरियड सेम ही होगा, क्योंकि साइन ऑफ 4πt है। क्यों होगा बताइए टाइम पीरियड सेम, क्योंकि अगर 1 है एम्पलीट्यूड मतलब क्या होगा सिग्नल को आप शिफ्ट कर रहे हो ऊपर। अगर मान लीजिए कोई एक साइन सिग्नल है कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π, इसका 2π है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस सिग्नल को शिफ्ट कर रहे हैं कितना से +1 से, तो +1 से जो शिफ्ट करोगे तो वो क्या होगा सिग्नल बताओ, +1 से शिफ्ट करने का मतलब हो गया सिग्नल थोड़ा ऊपर जाएगा। ये सिग्नल x ऑफ t नहीं, ये क्या है साइन t के लिए एग्जांपल बोलना, तो सिग्नल का +1 है मतलब जो 0 था वो 1 पे आ जाएगा, जो 1 था वो 2 पे आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से सिग्नल आएगा। और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये 1, सॉरी ये 1 यहाँ पर नहीं आएगा, ये एक्चुअली आपका हो गया 0 पे 1 मीन्स ये आपका हो जाएगा
1, 1 का एक्सिस हो गया और 1 के अक्रॉस जो है साइन का ग्राफ होगा, दैट इज इस तरह से। और ये जो पोर्शन है ये भी 2 पाई होगा। सो इसलिए टाइम पीरियड दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग। इंडिपेंडेंट किसका होता है? टाइम शिफ्टिंग का, टाइम रिवर्सल का, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, कॉमा एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग एंड चेंज इन फेज ऑफ सिग्नल, ये सब अगर हो मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम होगा। अगर किसी सिग्नल को शिफ्ट किए हो या फिर टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग या फिर चेंज इन फेज किए हो, तब पर भी उसका टाइम पीरियड जो है ना, फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम ही होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्या हो गया ये फंडामेंटल टाइम पीरियड या फिर पीरियोडिक सिग्नल के बारे में। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लीजिए एफ ऑफ टी एक सिग्नल है जिसका वैल्यू इस तरह से साइन स्क्वायर इंटू 4 पाई टी है, ठीक है। तो इसका बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिग्नल है इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लीनियर फॉर्म में क्या होगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना है। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दोगे, साइन स्क्वायर का है मीन्स 1 माइनस cos 2 थीटा होगा। सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा मीन्स 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 8 पाई टी डिवाइड बाय हाउ मच? 2, क्योंकि ये 2 डिवाइड करते हैं। सो ये क्या हो गया? ये देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होगा। एफ ऑफ टी को फिर से लिखोगे तो ये क्या होगा? हाफ माइनस हाफ ऑफ कॉस ऑफ 8 पाई टी होगा ना। ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड में शिफ्टिंग हो रहा है, ये रिवर्सल हो रहा है। रिवर्सल मीन्स एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है और ये हाफ का कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट में। और ये ओमेगा नॉट इंटू टी होता है, कोई भी साइन या कॉस होते हैं। ये कितना है? 8 पाई है। सो हमारा टाइम पीरियड कितना होगा? सिंपल 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, दैट इज 2 पाई बाय 8 पाई। सो दिस विल बी नथिंग बट योर 1/4 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया टाइम पीरियड। नाउ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है? द सम ऑफ टू और मोर देन टू periodic signal will be periodic only if their ratio of fundamental time period that is FTP जिसको बोलते हैं या T नॉट, और फंडामेंटल टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड हो या फिर फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, आर आ रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए 2 सिग्नल है, 2 से अधिक है, ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो उसका जो है ना नेट जो होगा, जो सम मीन्स मान लीजिए 2 सिग्नल है, 2 से अधिक कम्बिनेशन है, तो जो हमारा गिवन सिग्नल होगा वो पीरियोडिक होगा ओनली इफ क्या होगा? देयर रेशियो फंडामेंटल टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसको एग्जांपल, अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए x ऑफ टी इक्वल टू x1 ऑफ टी है प्लस x2 ऑफ टी है, ठीक है, प्लस माइनस है, ठीक है। तो अगर मान लो इस तरह का है, ठीक है, अगर इस सिग्नल का ये जो T1 है दोनों पीरियोडिक है, x1 भी एंड x2 भी दोनों पीरियोडिक हैं,
अगर दोनों पीरियोडिक है और x1 जो पीरियोडिक है, मान लीजिए t1 से टाइम पीरियड है फंडामेंटल टाइम पीरियड, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 है, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω1 है, और x2 का क्या है, t2 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, f2 फंडामेंटल टाइम पीरियड t2, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया f2 एंड फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया ω2। इस तरह से सिग्नल है। तो हम लोग को ये जो सिग्नल है x(t), क्योंकि ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक कैसे है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक, तो ये पीरियोडिक ओनली इफ़ होगा, ओनली इफ़ कब होगा, जब इफ़ t1 जो इसका टाइम पीरियड का रेशियो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर t1/t2 या f1/f2 और ω1/ω2, ये सभी क्या होना चाहिए, ये मस्ट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होगा। अगर ये रेशनल नंबर होगा तभी ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक हो गया तो इसका कुछ पीरियड होगा सिग्नल का, तो इसका जो पीरियड होगा, मान लो t0 क्या होगा, पीरियड। तो इसका पीरियड कैसे निकालोगे, दैट पीरियड विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1, t2 निकालेंगे, या फिर t1, t0 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा t0, और उसके बाद यदि f0 अगर निकालना है तो वो क्या कर दोगे, एचसीएफ ले लोगे, या फिर t0 का रिवर्स कर दोगे, ठीक है। तो एचसीएफ किसका निकालोगे, f1, f2 का, या फिर और ω0 निकालना है तो भी क्या करना है, एचसीएफ कर देना है किसका, ω1, ω2 का। आपको रिलेशन पता है ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, और ओमेगा इक्वल टू 2πf एंड f इक्वल टू 1/t मीन्स 2π/t होता है। ये हो गया इसका कंडीशन, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हो गया। क्या चेक करने के लिए, दो सिग्नल को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पीरियोडिक उसका जो टाइम पीरियड होगा उसका रेशियो लेना, और वो रेशियो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी योर रेशनल नंबर होगा। तो वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा, और पीरियोडिक हो गया तो उसका कुछ पीरियड होगा, वो निकालने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे दोनों टाइम का, t1 एंड t2। और एक बात हम बताना चाहते हैं, अगर मान लीजिए t1 आपका a/b के फॉर्म में और t2 आपका c/d के फॉर्म में है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप, एलसीएम ऑफ t1, t2, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, दिस एलसीएम विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ a, c, जो ऊपर का है उसका एलसीएम, और जो नीचे का है उसको एचसीएफ ले लेंगे, b, d, और दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो वो हमारा एलसीएम, वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। समझ गए ना। और यदि एचसीएफ लेना है तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम, रिवर्स, वाइस वर्सा। अगर यदि 3 सिग्नल हो गया तो 3 सिग्नल अगर होगा तो 3 सिग्नल में होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, अगर 3 मान लीजिए एक और आ गया, मीन्स प्लस माइनस x3 ऑफ t आ गया, जिसका t3 है, f3 है और ω3 है, तब क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे t1/t2 एंड t2/t3। ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। और इसका जो t0 आएगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ t1, t2 एंड t3, तीनों का एलसीएम आएगा। ये स्पेशल केस हो गया एक, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड एफटीपी। फाइंड एफटीपी मीन्स फंडामेंटल टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे ऑफ द गिवन सिग्नल इफ़ इट इज़ अ पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक, फाइंड एफटीपी इफ़ द गिवन सिग्नल इज पीरियोडिक। मतलब क्या करना है हम लोग को, सिग्नल को पहले चेक करना है कि सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं। अगर यदि वो पीरियोडिक है तब हम लोग को फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए x(t) इक्वल टू दे दिया गया है आपको साइन ऑफ 4πt प्लस कॉस ऑफ 2t। ये सिग्नल दे दिया। अब आपको ये बताना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ये सिग्नल और ये सिग्नल को चेक करना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक है। कॉस ऑफ 2t, कोसाइन फंक्शन या साइन फंक्शन, ये हमेशा पीरियोडिक होता है, ठीक है। तो कॉस फंक्शन जो है कॉस ऑफ t, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, t0, 2π/ω0। ω0 यहाँ पर क्या है, जो ω0 इंटू t होता है, तो ω0 यहाँ से क्या होगा 2, तो 2π/, क्या हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा पाई।
ठीक है। एक सिग्नल ये हो गया टाइम पीरियड, इसको मान लो आप T2, इसको मान लो T2, और जो x ऑफ t है रहने दो उसका, ये इसका बताइए, ये साइन, ये भी साइन सिग्नल मीन्स ये भी क्या होगा पीरियोडिक, इसको मान लो T1, तो इसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, ये 4 पाई इंटू टी, ओमेगा इंटू टी होता है, सो 2 पाई बाय 4 पाई, तो ये कितना हो जाएगा हाफ। T1 T2 आपको फाइंड आउट हो गया। अब देखिए ये भी पीरियोडिक है, एक्स ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है, इसका मतलब नेट जो होगा ये भी क्या होगा पीरियोडिक। सो इसका मान लीजिए पीरियोडिक जो है टाइम पीरियड कितना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड T0। तो T0 हम लोग कैसे निकालेंगे, T0 निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM ऑफ T1 कॉमा T2 करें। तो LCM किसका लेंगे हम लोग, LCM ऑफ हाफ कॉमा पाई। तो LCM ऑफ हाफ कॉमा पाई मीन्स LCM ऑफ नो पहले, इसके पहले हम लोग को क्या चेक करना है, सो यहाँ पर कंडीशन क्या था, पीरियोडिक कब होगा सिग्नल, पीरियोडिक कब होगा जब ये जो रेशियो है T1/T2 और ओमेगा 1/ओमेगा 2 वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी वो पीरियोडिक होगा। सो अगर ये मान लीजिए दोनों सिग्नल दैट इज़ ये साइन वाला और ये कॉस वाला, ये दोनों तो पीरियोडिक है हम लोग को पता है, लेकिन ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा उसके लिए हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, T1/T2 रेशियो, और रेशियो शुड भी क्या होना चाहिए, रेशनल। इफ़ ये होगा तभी, मतलब चेक करना पड़ेगा T1/T2, बताइए क्या होगा, T1 क्या है हाफ और T2 क्या है आपका पाई, तो 1/2 पाई हो गया। ये कितना हो गया 1/2 पाई, 1/2 पाई। और हम लोग को पता है जैसे ये पाई हुआ √2 हुआ √3 हुआ √3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ये नहीं है, तो इट इज़ नॉट रेशनल, रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नंबर नहीं है सो हमारा x ऑफ t क्या हो गया, इट इज़ नॉट पीरियोडिक है ही नहीं, तो इसका टाइम पीरियड निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए ना कैसे करना है, ठीक है। सो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। x ऑफ t मान लीजिए दिया है आपको साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी प्लस साइन ऑफ √2 पाई ऑफ टी, इसका चेक करना है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले इसके बारे में बताइए, टाइम पीरियड T0 क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ओमेगा इंटू टी होता है, सो √2 इंटू पाई, सो पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, सो इट विल बी √2। इसके लिए बताइए T0 क्या होगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या है ऑब्वियसली 2 पाई है यहाँ पर ओमेगा नॉट, सो 2 पाई बाई 2 पाई 1 और √2। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा T1/T2, T1 कितना है, T1 हो गया ये और ये T2 हुआ, ठीक है। T1 कितना है आपको 1 और T2 कितना है √2, तो देखिए 1/√2 आ गया, सो इट इज़ नॉट रेशनल। √2 का मतलब क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट रेशनल मीन्स नॉट पीरियोडिक, x ऑफ t इज नॉट पीरियोडिक, ये सिग्नल हमारा पीरियोडिक नहीं है, समझे। तो इसलिए टाइम पीरियड हम लोग को निकालने का कोई ज़रूरत नहीं हुआ। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज x ऑफ t इक्वल टू, मान लीजिए साइन ऑफ 4 पाई t प्लस कॉस ऑफ 7 पाई t प्लस 30 डिग्री, ये सिग्नल को हम लोग को चेक करना है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए ये कॉस है, ये है, उसके दिए है। अगर यदि मान लीजिए फेज शिफ्ट है, फेज शिफ्ट किस में, कॉस ऑफ 7 पाई t में फेज शिफ्ट है 30 डिग्री, इसलिए इसका जो पीरियोडिक ये जो पीरियोडिक होगा दैट इज ओमेगा नॉट, वो क्या होगा सिंपल सेम पाई 7 पाई ही होगा। मतलब जो हमारा टाइम पीरियड कॉस ऑफ 7 पाई t का होता है वही जो टाइम पीरियड किसका होगा, फेज में जो शिफ्टेड सिग्नल होगा उसका भी सेम ही टाइम पीरियड होगा। तो इसका हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, मान लीजिए T2, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा नॉट कितना है 7 पाई, सो इट विल बी 2/7। नाउ इसका ओमेगा नॉट निकालिए, इसका T1 निकालिए, कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा नॉट क्या 4 पाई, सो इट विल बी हाफ। देयरफॉर
देयरफॉर नाउ वी नीड टू चेक फॉर T1/T2. T1/T2 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू T2 कितना है 2/7, सो इट विल बी 7/4. 7/4 क्या है, ऑब्वियसली रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सो इट मीन्स दैट इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन. सो इट इज अ पीरियोडिक. सो x ऑफ t क्या हमारा पीरियोडिक है. अगर x ऑफ t रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऐसा होता है जिसको हम लोग रेशियो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी इंटीजर वैल्यू हो, जैसे 7/4 इंटीजर. ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया. अब पीरियोडिक फंक्शन हो गया तो इसका मान लीजिए टाइम पीरियड T0 है, किसका, x ऑफ t का टाइम पीरियड कितना मानेंगे, x T0. और T0 क्या होता है, एलसीएम ऑफ T1, T2. तो एलसीएम T1 कितना है, LCM of half, 2/7. So this will be nothing but your LCM of 1, 2, LCM of 1, 2 and HCF of 2,7 करके सॉल्व कीजिए. कितना होगा LCM of 1, 2. 1, 2 का LCM कितना होता है 2 ही होता है, और 2,7 का HCF 1. सो टाइम पीरियड इज 2. सो दिस विल बी योर T0. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. सो तो टाइम पीरियड आप समझ गए कैसे निकालना है दो सिग्नल का. अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो उसका क्या चेक करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ 1 and 2, रेशियो ऑफ 1 and 2 हम लोग को चेक करना पड़ता है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को दैट इज़ वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंटली मिलते रहे. ठीक है, बराबर मिलते, जैसे ही अपलोड करेंगे वीडियो या कुछ अपडेट करेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा. तो पीरियोडिक हो गया 7 नंबर. अब 8 नंबर में हम लोग चलेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही. तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं देख लेते हैं. सिग्नल एंड सिस्टम हम लोग ने न्यू सब्जेक्ट शुरू किया है. इसमें लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करना है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल. और जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें कुछ पोर्शन जो हम लोग देखें, इंट्रोडक्शन देखें, एप्लीकेशन देखे हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन का जो ना कुछ पोर्शन देखें, और डेफिनेशन देखें, सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन सेक्शन में. और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल हम लोग ने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है. कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, एनालॉग एंड डिजिटल, एंड डिटर्मिनिस्टिक एंड द रैंडम सिग्नल के बारे में हम लोग ने देखा है. उसके बाद हम लोग ने 4 सिग्नल दैट इज इवन एंड ऑड सिग्नल के बारे में डिस्कस किया है. उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व किया है. उसके बाद 5th सिग्नल हम लोग ने डिस्कस किया है, दैट इज कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल एंड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल क्या होता है. तब फिर हम लोग 6th क्लासिफिकेशन दैट इज हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल के बारे में डिस्कस किया है. उसके बाद हम लोग ने 7th सिग्नल के बारे में डिस्कस किया, दैट इज़ द पीरियोडिक एंड द नॉट पीरियोडिक सिग्नल. पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, समझे. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.